أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. یہ سورہ ہود کی آخری رکوع کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہوا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے. کتاب سے مراد یہاں پر تورات ہے. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس کے اندر میں اختلاف کیا گیا. تورات کو بھی بعض لوگوں نے مانا، بعض لوگوں نے نہیں مانا. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے ماننے والوں کے اندر میں بھی دو جماعتیں ہو گئی. کتاب کو ماننے والی، کتاب کو نہ ماننے والی، یہ دو جماعتیں ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری باتوں کو یہاں سے حذف کر کے ایک بات آخر جو ہوا کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اگر وہ کلمہ اور وہ بات جو تیرے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر وہ کلمہ اور وہ بات جو تیرے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکا ہے، اگر وہ کلمہ نہ ہوتا تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان کے اندر میں فیصلہ کر دیا جاتا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وقت متعین ہے، عذاب کا وقت متعین ہے. دنیاوی عذاب کے لیے بھی وقت متعین ہے، آخرت کے عذاب کے لیے بھی وقت متعین ہے. اس سے پہلے بے ایمان، کافرین، مشرکین اگر انبیاء علیہ السلام سے مطالبہ کرتے عذاب کے نازل ہونے کا تو عذاب نازل نہیں ہوتا. عذاب اس کے وقت مقرر ہی کے اوپر میں نازل ہوتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل کی گئی اور لوگوں نے اختلاف کیا، موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، تورات کا انکار کیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا عذاب اسی وقت کے اندر ان کے اوپر میں آ جاتا. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی اور اپنے علم ابدی کے اعتبار سے لکھ رکھا ہے کہ کون سی قوم پر اور کون سی امت پر عذاب کو کب نازل کرنا ہے اور کن حالات کے پیش آنے پر عذاب کو نازل کرنا ہے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اگر وہ بات علم ازل میں اور علم ابد میں تیرے پروردگار کی طرف سے پہلے اگر نہ کہی ہوتی تو لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان کے اندر میں فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ اس کتاب کے بارے میں شک کرنے والے ہیں، اور یہ ایسا شک ہے کہ اس شک سے وہ دور ہونے والے نہیں ہیں. بہت ہی زیادہ اس کے اندر میں یہ لوگ شک کرنے والے ہیں. یہاں مفسرین نے
हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात को ज़िक्र किया है और मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह क़सस के अंदर में भी बयान फरमाया है। ये सूरह क़सस है, उसका एक रुकू तो पहले आपको तर्जुमा पढ़ करके सुनाया गया था जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस लड़कियों को पानी पिलाया था उसका। इसके अंदर में जो अभी सूरह हूद की आयतें पढ़ी गई, इसके ज़िम्मे के अंदर में उलमा और मुफस्सिरीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का भी तज़किरा किया हुआ है और सूरह क़सस के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तज़किरा फरमाया है, जिसका हम तर्जुमा कर देते हैं। व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में बात डाली कि उनको दूध पिलावे। वही का नाजिल, औहैना का माना जो है वो वही नाजिल करने का होता है। औहैना का लफ्ज़ बहुत सी जगहों के अंदर में कुरान पाक के अंदर में इस्तेमाल किया गया। अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए, रसूलों के लिए औहैना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसी तरीके से उम्मे मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के लिए भी अल्लाह ताला ने औहैना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और शहद की मक्खी के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने औहैना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो औहैना का माना एक ही नहीं है, वही उतारना। वो औहैना का माना दिल के अंदर में बात डालने का भी आता है। वो औहैना इला उम्मी मूसा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल के अंदर में बात डाली, अन अर्दिई, कि उनको तुम दूध पिलाओ। फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि, फिर जब तुम उन पर डरने लगो, फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मी, तो उनको समंदर के अंदर में डाल दो। वला तख़ाफ़ी, और डरना मत, वला तहज़नी, और गम मत करना। इन्ना राद्दूहु इलैकी, बेशक हम उसको आपकी तरफ ज़रूर बेज़रूर लौटाने वाले हैं। वजाइलुहु मिनल मुरसलीन, और हम उसको रसूलों में से बनाने वाले हैं। फ़िरौन ने ख्वाब देखा था कि बनी इसराइल में कोई बच्चा पैदा होगा और उस बच्चे के हाथों फ़िरौन की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, फ़िरौन की सल्तनत ख़त्म हो जाएगी। नजूमियों को बुलाया, ख्वाब की ताबीर करने वालों ने ताबीर जब ये बताई कि बनी इसराइल के अंदर में एक बच्चा पैदा होगा जिसके हाथों तेरी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तो उसने कानून नाफिज कर दिया कि बनी इसराइल में जितने भी लड़के पैदा हों उन लड़कों को ज़बह किया जाए, और लड़कियां पैदा हो तो उन लड़कियों को बाकी रखा जाए, ज़िंदा छोड़ दिया जाए, ज़िंदा छोड़े रखा जाए। काफ़ी अरसे तक ये कानून नाफिज हुआ, जारी हुआ। इसके बाद में उसी के दरबारियों ने ये कहा कि जितने भी लड़के हैं अगर उनको मार दिया जाएगा और लड़कियों को ज़िंदा रखा जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि लड़कियां ज़्यादा होगी और उनके साथ में शादी करने के लिए लड़के नहीं मिलेंगे। तो फिर कानून के अंदर में तब्दीली की, तरमीम की, कहा कि 1 साल जो है लड़कों को ज़िंदा छोड़ दिया जाए और 1 साल जो है कत्ल कर दिया जाए। हारून अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए वो उस साल के अंदर में पैदा हुए जिस साल के अंदर में लड़कों को ज़िंदा छोड़ दिया जाता था, और मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए वो उस साल के अंदर में पैदा हुए जिस साल के अंदर में लड़कों को ज़बह और कत्ल किया जाता था। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इनकी वालिदा का नाम उलमा ने और मुफस्सिरीन ने अरैहा लिखा हुआ है, और इनकी बहन का नाम एक रिवायत के मुताबिक मरियम लिखा हुआ है और एक कौल के मुताबिक कुलसुम लिखा हुआ है। वअवहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल के अंदर में बात डाली अन अर्दिई, कि उनको दूध पिलाते रहो। फिरौन के जो लश्कर
और सिपाही थे वो घर घर घूमते रहते थे, तलाशी लेते रहते थे। जहाँ कहीं भी विलादत और डिलीवरी की बात मालूम पड़ती वहाँ जाते और पूछते थे कि लड़का पैदा हुआ या लड़की। अगर लड़का पैदा हुआ होता तो उसको ज़बह कर देते और लड़की पैदा होती तो उसको छोड़ देते थे। अब ये जब लड़का पैदा हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल के अंदर में खौफ और डर पैदा हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम्हारा काम है दूध पिलाना, तुम्हारा काम दूध पिलाना है, अन अर्दिई, तुम उसको दूध पिलाओ बस। लेकिन फिरौन के लश्कर और फिरौन के सिपाही अगर आ जावे और घेर लेवे और अगर तुमको ये डर हो जावे कि इस बच्चे को पकड़ लिया जाएगा, फ़इज़ा ख़िफ़्त अलैहि, जब उनके बारे में तुम डरने लगो, फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मी, तो इस लड़के को समंदर के अंदर में डाल दो। उलमा किराम ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा और उनके घर वालों ने एक संदूक और एक बॉक्स बना करके तैयार रखा हुआ था। एक कौल के मुताबिक उस संदूक और बॉक्स के साथ में एक रस्सी भी थी, रस्सी थी कि उस संदूक को अगर ज़रूरत पड़े तो बच्चे को संदूक में डाल करके समंदर के अंदर में छोड़ दें और किनारे 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 उनकी जो बहन थी मरियम या कुलसुम, ये उस संदूक की रस्सी को पकड़ती पकड़ती ले करके चले। इस तरीके से भी ये कौल लिखा हुआ है। तो बगैर के संदूक तैयार था। जब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को ख़तरा महसूस हुआ कि अब पुलिस वाले पकड़ करके ले जाएंगे, तो उन्होंने संदूक के अंदर में डाला। तो अल्लाह ताला ने पहले से हुक्म दे दिया कि फ़इज़ा ख़िफ़्त अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मी, संदूक के अंदर में डाल दो। वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी, खौफ मत करो, गम मत करो, इन्ना राद्दूहु इलैकी, हम उसको तुम्हारी तरफ वापस लौटाने वाले हैं, या हम उनको तुम्हारी तरफ वापस लौटाएंगे। अभी बच्चे का नाम रखा गया नहीं है। वजाइलुहु मिनल मुरसलीन, और इस बच्चे को हम अंबिया अलैहिस्सलाम में से बनाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को दो इत्मीनान दिलाए। एक इत्मीनान ये दिलाया कि इन्ना राद्दूहु इलैकी, तुम्हारी तरफ हम इसको वापस करेंगे, एक बात। वजाइलुहु मिनल मुरसलीन, और उसको हम रसूलों में से बनाएंगे। आम तौर पर जितने भी रसूल अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर में आए और उनको रिसालत और जो नबूवत दी गई, आम तौर पर ज़्यादातर 40 साल की उम्र के अंदर में दी गई। इस एतबार से अगर देखें कि वजाइलुहु मिनल मुरसलीन, हम उनको रसूलों में से बनाने वाले हैं, तो मतलब ये हुआ कि कम अज़ कम वो 40 साल तो जिएंगे, जिंदा रहेंगे। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक संदूक को डाल दिया गया दरिया के अंदर में। फल्तक़तहु आलु फ़िरऔन लियकून लहुम अदुव्वन व हज़नन इन्न फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुमा कानू ख़ातिईन। मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि ये दरिया नील के अंदर में डाल दिया गया था। पहले भी बताया था कि फ़िरौन दरिया नील में डूबा नहीं था, फ़िरौन डूबा था बहरे कुलज़ुम के अंदर में। कुलज़ुम नाम का जो समंदर है उसमें, ये दरिया नील के अंदर में संदूक को डाला। उलमा और मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि फ़िरौन और उसकी बीवी ये आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा, ये अपने दरबार में, अपने मकान के ऊपर में, बाला खाने में, आगासी के अंदर में बैठे हुए थे और उसके मकान के पास से नहर बहती थी। दूर से देखा कि नहर के अंदर में कोई संदूक जा रहा है। दोनों ने देखा तो आसिया ने कहा कि इसको मंगवा लिया जाए, क्या है देखें इसके अंदर में क्या है। तो फिरौन ने हुक्म दिया अपने दरबारियों को और अपने पुलिस वालों को कि वो संदूक को लाया जाए। संदूक को उठा करके लाए। बाज़ लोग यूँ कहते हैं कि आसिया ने ये कहा फिरौन से कि संदूक तुम्हारा और संदूक के अंदर में है ये मेरा, लेकिन ये किसी किताब के अंदर में मिलता नहीं है। वाइज़ीन और कस्सासीन जो होते हैं, बंडल मारने वाले, बंडल मार देते हैं। हाँ, इसराइली रिवायतें भी हम बयान नहीं करते, और ऐसी रिवायतें कि जिनका तज़किरा
अहादीस के अंदर में नहीं है, ऐसी रिवायतों को भी हम बयान नहीं करते हैं। खैर, बगैर के बगैर उनकी बात मान लें कि भाई संदूक के अंदर में वो मेरा और संदूक तुम्हारा, तो बॉक्स तो हो गया फिरौन का। और संदूक के अंदर में क्या निकला? वहाँ जब खोला तो निकला लड़का उसके अंदर में से। बगैर के फल तक़तहु आलु फिरऔन, फिरौन वालों ने उसको उचक लिया, उस बच्चे को, लड़के को ले लिया। अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब है, गैब का जानने वाला है। फिरौन को नहीं मालूम कि ये बच्चा कौन सा है और इस बच्चे के हाथ मेरा क्या होने वाला है और इस बच्चे के हाथ मेरी हुकूमत जाने वाली है, मेरे लश्कर का खात्मा होने वाला है, उसको नहीं मालूम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस बच्चे को फिरौन वालों ने क्यों उठाया? फल्तक़तहु आलु फिरऔन, फिरौन वालों ने इस बच्चे को उठा लिया। उसकी वजह, उसकी सबब और उसकी इल्लत अल्लाह तबारक व तआला ने अभी बयान कर दी। एक तरफ बच्चे को उठा करके लाया गया दरबार के अंदर में और अल्लाह ताला ने उसकी वजह और सबब बयान कर दिया। लियकून लहुम अदुव्वन व हज़नन, अदु दुश्मन को कहते हैं। इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वन मुबीना, खुला हुआ दुश्मन है, अदु यानी दुश्मन। लियकून लहुम, ताकि ये बच्चा उनके लिए यानी फिरौन और फिरौन के मानने वालों के लिए बन जाए। क्या बन जाए? अदुव्वन, दुश्मन बन जाए। वह हज़नन, और गम का सबब बन जाए। थोड़े दिन पहले हमने बताया था कि आइंदा ज़माने के अंदर में अगर कोई खौफ और कोई डर है, कोई डर आइंदा ज़माने में, तो उसको खौफ कहते हैं। और गुजरे हुए ज़माने के अंदर में कोई बात कर डाली, उसकी वजह से अगर डर लगे तो उसको हुज़्न कहते हैं। इसलिए गाय फ़ौर के अंदर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तसल्ली दी थी। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ला तहज़न का, ला तख़फ नहीं कहा था, गम मत करो, हाँ ये कहा था। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बच्चा जिनको ये लोग पालेंगे और आगे जा कर के इस बच्चे को उठाना और इस बच्चे को पालना उनके लिए गम का सबब बनेगा। काश कि हम इस बच्चे को न पालते और काश कि इस बच्चे को संदूक के अंदर में हम बहता हुआ जाने देते। इन्न फिरऔन व हामान व जुनूदहुमा कानू खातिईन, बेशक फिरौन और हामान और इन दोनों का लश्कर कानू खातिईन, बड़े खता पर थे, बड़ी गलती के ऊपर में थे। ये संदूक जो है फिरौन के पास में खोला गया तो फिरौन की बीवी जो आसिया थी रज़ियल्लाहु अन्हा, वकालत इम्रअतु फिरऔन, फिरौन की औरत ने कहा कुर्रतु ऐनिन ली वलक, कुर्रत ठंडक को कहते हैं, ऐनुन आँख को कहते हैं, कुर्रतु ऐनिन ये तो आँखों की ठंडक है, ली मेरे लिए, वलक और तेरे लिए। आसिया ने फिरौन को समझाया, इसलिए कि लड़का निकला तो जाहिर बात है कि आसिया को भी खतरा महसूस हुआ कि लड़का निकला तो अभी ऑर्डर करेगा और इसको मार डालेगा। तो आसिया ने कहा फिरौन से कि ये मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है, ला तक़्तुलू, इसको कत्ल मत करना। उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फिरौन से कहा कि कुर्रतु ऐनिन ली वलक, ये मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है, ला तक़्तुलूहु, इसको कत्ल मत करना, तो कहते हैं कि फिरौन ने यूँ कहा था कि ये तेरी आँखों की ठंडक होगा, मेरी आँखों की ठंडक नहीं है। कुर्रतु ऐनिन ली, तेरी आँखों की ठंडक होगा, मेरी आँखों की ठंडक नहीं है। इस पर उलमा किराम ने लिखा है कि अगर ये फिरौन ये लफ्ज़ न बोलता, कौन सा, कि तेरी आँखों की ठंडक है, मेरी आँखों की ठंडक नहीं है, अगर ये अल्फाज फिरौन न बोलता तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी, फिरौन को भी हिदायत दे देते, जिस तरीके से हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत दे दी। ला तक़्तुलू असा यनफ़ाना, आसिया ने कहा कि असा यनफ़ाना, यकीनन ये लड़का हमको नफ़ा देगा, फ़ायदा पहुँचाएगा। और नत्तख़िज़हु वलदा,
या हम इसको अपना बेटा बना लेंगे, दत्तक ले पालक बेटा बना लेंगे। ये सारी बातें हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वहुम ला यशऊरून, वहुम ला यशऊरून, उनको कुछ भी एहसास नहीं है कि ये आपस में क्या बातें करते हैं और किसके बारे में सोचते हैं वगैरह। उलमा किराम ने लिखा है कि अभी थोड़े दिन पहले बताया था मैंने कि नूह अलैहिस्सलाम के 4 लड़के थे। इनमें से कनान, ये तो नाफरमान था जो पानी के अजाब के अंदर में डूब गया। दूसरे 3 लड़के थे, हाम, साम और याफिस, ये 3 लड़के थे और ये तीनों मुसलमान थे। तो जो हाम लड़का था, हाम नूह अलैहिस्सलाम का लड़का हाम, और हाम का लड़का था मुजाहिम, और मुजाहिम की लड़की जो थी ये थी आसिया। ये हज़रत आसिया रदी अल्लाह अन्हा जो है, ये क्या हुई रिश्ते के अंदर में, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम के बेटे मुजाहिम की बेटी, यानी नूह अलैहिस्सलाम के पोते की लड़की आसिया रदी अल्लाह अन्हा जो है वो नूह अलैहिस्सलाम के पोते की लड़की हुई। दूसरी बात उलमा किराम ने यहाँ पर ये लिखी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब हुकूमत अता की और उनके भाई और उनके वालिदैन वगैरह को मुल्क शाम से मिस्र बुलाया गया और मिस्र के अंदर में ये लोग बसे, तो याकूब को इसराइल कहते थे। याकूब के बेटे बनी याकूब यानी बनी इसराइल, ये जो बनी इसराइल थे ये इसी के अंदर में बसते थे। और उलमा किराम ने लिखा है कि ये जो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की जो औलाद थी ये भी इनके रिश्तेदारों के अंदर में से थे, और दूर से आसिया रदी अल्लाह अन्हा रिश्ते के अंदर में दूर से फूफी लगती थी। उलमा ने लिखा है कि दूर के रिश्ते के एतबार से आसिया जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम की फूफी लगती थी। असा अन यनफाना और नत्तखिज़हु वलदा वहुम ला यशऊरून, उनको एहसास नहीं है, पता नहीं है कि ये क्या मशवरा हो रहा है। वो अस्बह फुआदु उम्मी मूसा फारिगा, बच्चे को डाल दिया गया संदूक के अंदर में और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल ये खाली हो गया। इन कादत लतुब्दी बिही, बेचैन हो गई, बच्चा चला गया मेरा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल के अंदर में ये बात डाली थी कि ये मेरा लड़का है, इस तौर पर लोगों के सामने जाहिर मत करना। तो सब्र करती रही। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन कादत लतुब्दी बिही, करीब था कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जाहिर कर देती। लौला और रबतना अला कल्बिहा, अगर मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल को हम मजबूती के साथ में बांधे न रखते, ये तकूना मिनल मुमिनीन, ताकि वो हो जाए ईमान लाने वालों में से। वक़ालत लिउख्तिही, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा, मरियम नाम था या कुलसुम नाम था, उससे कहा कुस्सी ही, उसके पीछे पीछे चलती रहे। फबसरत बिही अन जुनबिन, और दूर से उस संदूक को देखती रहे। वहुम ला यशऊरून, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर भी उनको मालूम नहीं है। फिर उनके दरबार के अंदर में पहुँचे, नवमौलूद बच्चा था और औरतों को बुलाया गया दूध पिलाने के लिए। किसी की भी छाती को मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल नहीं किया। वहर्रमना अलैहिल मरादिअ मिन क़ब्लु, इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला फरमाते फिरौन के दरबार के अंदर में पहुंचने से पहले सारी छातियों को, दूध पीने की जगहों को मूसा अलैहिस्सलाम पर हमने हराम कर दिया था। किसी की भी छाती ये ले सकते नहीं है, तकवीनी तौर पर अल्लाह ताला ने उनके लिए हराम कर दिया था। तो किसी की छाती अपने मुंह के अंदर में लेते ही नहीं है। कहते हैं कि उनकी जो बहन थी मरियम या कुलसुम, ये फिरौन के दरबार के अंदर में काम करती थी। तो सारी औरतों को बुलाया गया, किसी की छाती को मूसा अलैहिस्सलाम ने मुंह में लिया नहीं। तो उनकी बहन ने कहा, फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहली बैतिन यकफुलूनहु लकुम, पूछने लगी कि अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं एक ऐसे घर वालों का तुमको पता दूँ और बताऊँ
यकफुलूनहु लकुम, इस बच्चे की कफालत और परवरिश की जिम्मेदारी वो घर वाले ले लेंगे, वो खानदान वाले ले लेंगे। अब ये मशवरा देने वाली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन है। अब मशवरा देगी तो किसका देगी? अपनी माँ ही का मशवरा देगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलाकिन अक्सरुहुम ला यअलमून, लेकिन उनमें से अक्सर लोग जो वो जानते नहीं थे कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की बहन है और ये बच्चा जो है वो मूसा है और ये वो बच्चा है कि जिसके हाथ पर हुकूमत वगैरह जाने वाली है। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया हुआ है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, और बाज़ रिवायतों के अंदर में भी आता है, ज़ईफ़ रिवायतें कहूँ या ऐसी, कि मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पलने लगे और एक मरतबा ऐसा हुआ कि गोद के अंदर में थे और मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाचा मार दिया। तो इसकी वजह से फ़िरौन ज़रा चौकन्ना हो गया कि छोटा सा बच्चा इसने मुझे तमाचा मारा, हो सकता है कि ये वही लड़का है कि जिसके हाथ पर मेरी हुकूमत सल्तनत जाने वाली है। आसिया ने फिर समझाया कि बच्चे तो ऐसे होते हैं, बच्चे के अंदर में कहाँ अकल होती है, बच्चे में कहाँ समझ होती है, लेकिन मुझको तो वही बच्चा लगता है। आसिया ने समझाने के लिए एक प्लेट के अंदर में, रकाबी के अंदर में हीरे और जवाहिरात चमकते हुए रखे और दूसरे प्लेट के अंदर में आग जला करके रखी, और मूसा अलैहिस्सलाम अभी 4 पाँव चलते थे, 4 पाँव चलते थे। आगे दूर जानिब के अंदर में एक जानिब के अंदर में चमकते हुए हीरे रखे और दूसरी जानिब के अंदर में आग को जला करके रखा और यहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम को छोड़ा। तो मैं कहता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तो कट मारी थी सीधी जवाहिरात की तरफ, कट मारी थी किसकी तरफ? जवाहिरात की तरफ। ये तो मैं कहता हूँ, यानी मूसा अलैहिस्सलाम जवाहिरात को चमकते हुए देख करके उधर जा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और स्टीयरिंग घुमा दी कि मूसा भाई खैर नहीं, अगर उधर गए तो हाँ इधर जाओ, दौड़ा दिया किसकी तरफ? आग की तरफ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वो अंगारा जो था आग का, ये अपने मुंह के अंदर में ये रख लिया और इसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान जो है वो जल गई। इसकी वजह से उनकी ज़बान के अंदर में लुकनत पैदा हो गई, तोतलापन, लुकनत जो पैदा हुई ना, पैदाइशी तौर पर लुकनत नहीं थी, ये किस्सा पेश आया और आग को ज़बान के ऊपर में रख दिया, जल गई ज़बान, इसकी वजह से लुकनत पैदा हो गई। इसीलिए जब अल्लाह ताला ने उनको रसूल बनाया तो रसूल बनाने के साथ साथ बोल तो सकते नहीं थे, अच्छी तरीके से समझा नहीं सकते थे। वो तो बोले लेकिन सामने वाले को समझ में ना आया। नहीं, हम जानते हैं कि एक लफ्ज़ की जगह पर अगर दूसरा लफ्ज़ बोल दें तो सामने वाला कुछ से कुछ समझ ले। तो कहा कि मेरे भाई जो है हारून, उसको ज़रा रसूल बनाओ मेरे साथ में, और मुझसे बहुत अच्छी तकरीर करता है, हम वो अफसह मिन्नी, बहुत अच्छी सब ज़बान के अंदर में वो बोलता है। तो अल्लाह ताला ने उनको भी रसूल बनाया था। बगर के या फिर उसके बाद में मूसा अलैहिस्सलाम के नौजवान होने का किस्सा है वगैरह। लेकिन फिर यहाँ पर एक बात रह गई आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, जो फ़िरौन की बीवी थी। उन्होंने समझाया कि देखो ये बच्चा नासमझ बच्चा है, अगर समझदार बच्चा होता तो हीरे जवाहिरात को लेता, खाता और आग को मुंह के अंदर में न रखता। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तज़किरा फिर सूरह तहरीम के अंदर में फरमाया है। वज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रअत फ़िरऔन, अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल बयान फरमाई लिल्लज़ीना आमनु, उन लोगों के लिए जो कि ईमान लाए। किसकी मिसाल बयान फरमाई? इम्रअत फ़िरऔन, फ़िरौन की बीवी की अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल बयान फरमाई। इद क़ालत, जबकि फ़िरौन की बीवी ने कहा, रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नति वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमि ज़ालिमीन। रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने दुआ मांगी, ए मेरे परवरदिगार, इब्नि ली, मेरे लिए बनाओ, इंदक, अपने पास, अपने करीब के अंदर में, बैतन, एक घर, फिल जन्नति,
जन्नत के अंदर में। वनज्जिनी मिन फिरऔन, ए बारी ताला मुझे नजात दे दे फिरौन से, छुटकारा दे दे। वह अमल ही, और उसके अमल से मुझे नजात और छुटकारा दे दे। वनज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन, और मुझे नजात दे दे ज़ालिमीन कौम से। ये दुआ मांगी आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने। हम पहले भी कई मरतबा आपको बता चुके हैं कि कुरान कोई किस्सों की किताब नहीं है, कहानियों की किताब नहीं है कि इसके बाद में क्या हुआ न इसके बाद में क्या हुआ। अभी देखते थे हम सूरह हूद के अंदर में, फिर सूरह हूद के अंदर में से सूरह कसस के अंदर में गए, और सूरह कसस के अंदर में से फिर यहाँ पर आए सूरह तहरीम के अंदर में। ये दुआ कब मांगी? उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम नौजवान हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम से आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत मोहब्बत करती थी। उन्होंने कहा था नहीं कि अपने बेटा बना लेंगे, तो बहुत मोहब्बत करती थी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा। एक मरतबा ऐसा हुआ कि किब्ती और बनी इसराइली दोनों के दरमियान में झगड़ा हो रहा था। इतने में पूरा सन्नाटा था गांव के अंदर में, दोपहर का वक्त था, सब खाना वगैरह खा करके आराम के अंदर में थे। तो दो लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, एक किब्ती यानी फिरौन का मानने वाला, और एक बनी इसराइली मूसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का बनी इसराइल जल रहे थे और वो जुल्म कर रहा था। तो बनी इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत की कि इस तरीके से मुझ पर ये जुल्म करता है, ये वो वगैरह। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको डांटा डपटा और एक मुक्का जो मारा, फवक़ज़ मूसा फ़क़दा अलैहि, एक मुक्का मारा तो फ़क़दा अलैहि, उसका तो कामत तमाम कर दिया, यानी उसको तो ठंडा कर दिया, एक मुक्के से वो मर गया। अब कत्ल तो हो गया, मर्डर हो गया, दोपहर का वक्त था, किसी को मालूम नहीं था। वो बनी इसराइली सिर्फ जानता था कि कत्ल करने वाला कौन है। मालूम नहीं किस तौर पर ये बात शहर के अंदर में और गांव के अंदर में फैली। दूसरे दिन देखा यही वक्त था, वही बनी इसराइली था मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला जिसने कल शिकायत की थी, वही आज ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ लगा रहा था, और वो किसी और किब्ती के साथ में वो लड़ रहा था, झगड़ रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद में देखा कि ये अपने वाला कल भी लड़ रहा था, बनी इसराइली अपने वाला है, ये कल भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा है। तो कल तो मेरे हाथ से कत्ल हो गया, मर्डर हो गया। तो पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइली को डांटा, खूब डांटा, बराबर से डांटा, और उसके बाद में हाथ उठाया किब्ती को मारने के लिए। जो बनी इसराइली का और मूसा अलैहिस्सलाम का जो दुश्मन था उसको मारने के लिए हाथ उठाया, तो वो बनी इसराइली था, वो बोल पड़ा कि तू ऐसा चाहता है कि जिस तरीके से तूने कत्ल किया कल, इस तरीके से तो आज मुझे कत्ल करना चाहता है। तो यहाँ से बात फैल पड़ी कि कल का जो मर्डर हुआ था, कल का जो कत्ल हुआ था, उसका कातिल कौन था? मूसा अलैहिस्सलाम था। और उसने जाकर के फिरौन के दरबार के अंदर में शिकायत कर दी कि कल जो मर्डर हुआ था वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा लड़का है। इसलिए कि सब जो है मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन का बेटा समझते थे, दत्तक बेटा। आसिया को पता चला कि फिरौन के दरबार के अंदर में मूसा अलैहिस्सलाम को जेल में डालकर कत्ल करने की बातें हो रही है। तो आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक आदमी को भेजा कि जाओ, जल्दी से जाओ शहर के अंदर में, मूसा जहाँ कहीं भी हो उनको बोल दो कि यहाँ से भाग जाए, मिस्र से भाग जाए। इसलिए कि अगर भागेगा नहीं तो कल का जो कत्ल हुआ है वो उसी में किया था, और ये फिरौन इसको कत्ल कर डालेगा और मार डालेगा। इसका तज़किरा कहाँ पर है? यहाँ पर नहीं है। इसका तज़किरा सूरह यासीन के अंदर में, वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यस्आ, नहीं उसमें नहीं, और जगह के अंदर में सूरह कसस में शायद एक दौड़ता हुआ आदमी आया और मूसा अलैहिस्सलाम को कहने लगा कि भाई मैं तेरा खैरखा हूँ, दरबार के अंदर में तेरे कत्ल करने के बारे में मशवरा हो रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि तू यहाँ से भाग जा। तो वो जब भागे तो फिर मदाइन गए और बीच के अंदर में वो लड़कियों को पानी पिलाया। शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ 10 साल तक बकरियाँ चराई। फिर वापस आने के वक्त में कोहे तूर के ऊपर में अल्लाह ताला ने उनको नबी बनाया, और नबी बनाने के बाद में जब दरबार के अंदर में गए, फिर फिरौन का
मुकाबला हुआ जादूगरों का मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में, तो आसिया जो है हमेशा मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तहकीक करती रहती थी। आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा, जब भी कोई आसिया को मालूम पड़ता कि दोनों के दरमियान में कोई बहस हुई, मूसा के दरमियान में और फिरौन के दरमियान में, तो आसिया पूछती कि किसका गलबा हुआ, कौन जीता, फिरौन जीता कि मूसा जीता, कौन जीते? तो लोग कहते कि नहीं मूसा जीते, तो वो खुश होती थी। ये मूसा अलैहिस्सलाम के जीतने की वजह से वो खुश होती थी। जब जादूगरों का मुकाबला हुआ उस वक्त के अंदर में भी गलबा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हुआ, जादूगर भी मुसलमान हो गए और फिरौन की जो बीवी थी आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा, वो भी उसी वक्त के अंदर में मुसलमान हो गई। एक कौल तो ये है, इस आयत की तफसीर के अंदर में एक कौल तो ये लिखा गया है कि जब जादूगरों के साथ में मुकाबला हुआ तो जादूगर हार गए, मूसा अलैहिस्सलाम जीत गए। उस वक्त के अंदर में जादूगर जब ईमान लाए तो आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी उसी वक्त के अंदर में ईमान ले आई। और भी ईमान लाए थे, लेकिन फिरौन से और फिरौन के दरबारियों से अपने ईमान को छुपाते थे। आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा भी अपने ईमान को छुपाती थी। दूसरी बात, इस आयत की तफसीर के अंदर में उलमा किराम ने लिखी है कि फिरौन के दरबार के अंदर में एक औरत थी, दारोगा की औरत, वॉचमैन की एक औरत थी। बाज़ लोगों ने लिखा कि उस वॉचमैन की औरत को एक लड़की थी और ये लड़की आसिया के घर पर हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा वगैरह की खिदमत करती थी। या बाज़ लोगों ने लिखा कि आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा के पेट से एक लड़की पैदा हुई थी, वो लड़की थी फिरौन की और आसिया की। लेकिन मुहक्किकीन की ये तहकीक है और ये कौल है कि ये जो आसिया थी रज़ियल्लाहु अन्हा, मिस्र के अंदर में उस ज़माने के अंदर में सारी औरतों के अंदर में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत औरत थी और फिरौन ने उनके घर वालों पर जुल्म करके ज़बरदस्ती से इनके साथ में निकाह कर लिया था। हज़रत आसिया के साथ में निकाह कर लिया था। हज़रत आसिया उस वक्त में नहीं चाहती थी कि इसके निकाह के अंदर में रहे, लेकिन ज़बरदस्ती की, जिसकी वजह से वो निकाह के अंदर में आई और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी थी कि बारी ताला इसके जुल्म से और इसकी शहवत पूरी करने से मेरी हिफाजत फरमा, ये उसने दुआ मांगी थी। तो उलमा किराम ने लिखा है कि फिरौन आसिया के कमरे के अंदर में, रूम के अंदर में जब भी शहवत पूरी करने के इरादे से, नीयत से उसके कमरे के अंदर में, रूम के अंदर में फिरौन जाता तो उसका उज़्व मखसूस एकदम से नरम हो जाता। पेशाब की जो जगह है एकदम से नरम हो जाती, यानी औरत के काबिल वो रहता नहीं था। अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहता था कि मैं तो सबसे बड़ा रब हूँ, मैं तो सबसे बड़ा पालने वाला हूँ, मैं खुदा हूँ और ये हुकूमत मेरी है, ताकत मेरी है। और औरत के पास में जाता तो कमज़ोर होकर के, शर्मिंदा होकर के वापस आता था। इसलिए मुहक्किकीन का ये कौल है कि ये जो उनके दरबार के अंदर में जो बेटी थी, ये हज़रत आसिया के पेट से बेटी नहीं थी, या तो उन्होंने दत्तक ले रखा था, ले पालक, या तो जो उनका वॉचमैन था, वॉचमैन की जो ये लड़की थी, वो वॉचमैन की लड़की थी। वो वॉचमैन की लड़की भी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुकी थी, लेकिन उसकी जो वॉचमैन की बीवी ईमान ला चुकी थी, लेकिन वॉचमैन की जो लड़की थी वो ईमान लाई नहीं थी। आसिया ईमान ला चुकी थी, वो वॉचमैन की बीवी ईमान ला चुकी थी। और कुरान कहता है कि फिरौन से अपने ईमान को ये लोग छुपाते थे। उस लड़की को मालूम नहीं था, कंघी कर रही थी आसिया के बालों के अंदर में वो लड़की, और कंघी गिर गई। तो आसिया ने कहा कि अल्लाह का नाम ले करके उठा ले, बिस्मिल्लाह कह करके उठा ले। तो ताज्जुब करने लगी कि कौन, ये क्या, अल्लाह के नाम से अल्लाह कौन है? तो आसिया ने बताया कि मेरा, तेरा और सबका रब है, वो यही है। अब वो लोग जो कहते हैं कि वो लड़की जो थी, फिरौन की लड़की थी, उसने यूँ कहा कि तुम मेरे बाप को खुदा नहीं मानते, तुम मेरे बाप को रब नहीं मानते। कहा कि मेरा रब
तेरा रब और फिरौन का सबका रब जो है वो एक ही है और वो अल्लाह है। तो अब उस लड़की ने फिरौन को बता दिया कि इस तरीके से ये जो तुम्हारी बीवी है ये तो अल्लाह पर ईमान लाती है, मूसा अलैहिस्सलाम के रब के ऊपर में ईमान लाती है। मूसा अलैहिस्सलाम आसिया रदी अल्लाह अन्हा को बुलाया गया, फिरौन ने बुलाया और बुला करके समझाया तो आसिया ने कह दिया कि मैं तो मूसा के रब के ऊपर में उसी दिन से ईमान ला चुकी हूँ जिस दिन जादूगर हार गए थे और मूसा अलैहिस्सलाम जीत गए थे। अब उलमा किराम ने दो बातें लिखी है। एक बात तो ये लिखी है कि दारोगा की जो बीवी थी जो ईमान ला चुकी थी उसको बुलाया। दूसरी बात ये लिखी है कि नहीं, हज़रत आसिया ही को बुलाया। चलो जो भी है, दारोगा की यानी वॉचमैन की बीवी को बुलाया या हज़रत आसिया को बुलाया, दोनों में से किसी एक को बुलाया। बुला करके जो सज़ा लिखी गई है वो सज़ा दोनों के लिए एक ही लिखी गई। वॉचमैन की बीवी हो या आसिया हो, कहते हैं कि उसको लिटाया गया और लिटा करके उसके हाथों के अंदर में ज़मीन के ऊपर में लंबा करके उसको मेखें मारी, दोनों हाथों के अंदर में और पाँव के अंदर में मेखें मारी। और उसके बाद में फिरौन ने कहा कि अब बोलो क्या कहते हैं, मुझे रब मानती है या मुझे रब नहीं मानती। तो उस वक्त भी जो भी है, आसिया है या वो वॉचमैन की बीवी है, उन्होंने यही कहा कि नहीं, हम तुमको रब नहीं मानते। फिरौन ने फिर दरबारियों को हुक्म दिया कि अब इसको ले जाओ, ले जा कर के एक पहाड़ के करीब के अंदर में ले जाओ और बड़ी चट्टान ऊपर से इसके ऊपर में डालो और चट्टान को डालने से पहले फिर उनसे पूछो कि देखो, अगर फिरौन को तू मानती है तो तू फिरौन की बीवी है और तू आज़ाद है। अभी हम तुझको दरबार के अंदर में ले जाते हैं और अगर तू फिरौन को नहीं मानती तो देख ये चट्टान अभी ऊपर से डालेंगे तो तू मर जाएगी, दब करके चूर चूरा हो जाएगी। उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब ये हालात पैदा हुए, ये हालात जब पैदा हुए तो आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ये दुआ मांगी, इद क़ालत। अब ये पूरा किस्सा जब हमने सुना आसिया का और फिरौन का, अब तर्जुमा सुनो, अब मज़ा आएगा। इद क़ालत, जबकि कहा आसिया ने, रब्बी है मेरा परवरदिगार, इब्न ली इंदक बैतन, तुम्हारे पास अपने करीब के अंदर में मेरे लिए घर बनाओ, जन्नत के अंदर में। घर हो जन्नत में लेकिन अल्लाह के करीब। दो बातें मांगी, दो बातें, इंदक तेरे करीब और घर हो तेरे करीब, लेकिन हो किस में, फिर जन्नती, जन्नत में। ये दो बातें मांगी। वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही, और मुझे नजात दे फिरौन से, उसके अमल से, उसके काम से। वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, और मुझे नजात दे ज़ालिमीन कौम से। अब यहाँ पर वो ज़रा किस्सा ख़त्म करते हैं, फिर इसी आयत की तफसीर के अंदर में जो दूसरी तफसीर में लिखा है वो आपके सामने मैं अर्ज़ करता हूँ कि वो पहाड़ के पास में ले गए, उसको लिटाया, उसके बाद में चट्टान बताई कि देखो ये चट्टान है। तो आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये दुआ मांगी। अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़ाहिर पर पर्दा पड़ा हुआ है उस पर्दे को अल्लाह तबारक व तआला ने हटा लिया और इनका जो मकान था जन्नत के अंदर में, जो जन्नत मांगी थी ना अभी, इद क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नती, तेरे यहाँ तेरे पास में जन्नत के अंदर में एक घर मेरे लिए बना। ये जो दुआ मांगी थी अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दा हटा लिया और जन्नत वाला जो घर था वो आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा को नज़र आया। उसके बाद में उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उनकी रूह कब्ज़ हो गई। ये दूसरी दुआ थी नहीं, दूसरी दुआ कौन सी थी, वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही, उस फिरौन से, फिरौन के अमल से मेरी हिफाजत फरमा और ज़ालिमीन कौम से मेरी हिफाजत फरमा। तो गोया
आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब जन्नत देख ली और उनका इंतकाल हो गया तो वो लोग यूँ समझे कि ये बेहोश हो गई। फिरौन के जो मानने वाले थे दरबारी, वो यूँ समझे कि ये बेहोश हो गई। तो जो चट्टान थी ऊपर से, वो चट्टान उसके ऊपर में डाली और ये एकदम से ज़मीन के अंदर में पिस करके रह गई। लेकिन ये उस वक्त के अंदर में चट्टान डाली गई जबकि उनकी रूह निकल गई थी, ये इंतकाल कर चुकी थी, वापस इंतकाल कर चुकी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा को इस तौर पर ज़ालिमीन कौम से नजात अता फरमाई, फिरौन से और उसके अमल से नजात अता फरमाई। रूहुल मानी के अंदर में, तफसीर रूहुल मानी के अंदर में एक रिवायत लिखी हुई है। हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जब इंतकाल होने लगा, हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा का इंतकाल होने लगा, हज़रत खदीजा तो बड़ी थी ना उम्र में, हैं 15 साल बड़ी थी ना। इंतकाल जब होने लगा तो हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा जब तक ज़िंदा रही वहाँ तक किसी और औरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी नहीं की। और हज़रत इब्राहीम के अलावा जो मारिया किप्तिया से पैदा हुए, इनके अलावा बाकी जितने भी आपकी लड़कियाँ लड़के हैं वो हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा से पैदा हुए। मर्ज़ुल वफ़ात के अंदर में मुब्तला हुई, यानी सख्त बीमारी के अंदर में थी और उसी बीमारी के अंदर में उनका इंतकाल हुआ हज़रत खदीजा का। वो बीमारी के जिस बीमारी के अंदर में आदमी का इंतकाल हो जाए उस बीमारी को क्या कहते हैं? मर्ज़ुल वफ़ात, मर्ज़ुल वफ़ात कहते हैं, यानी वफ़ात की बीमारी। ऐसी बीमारी कि कहाँ तक ले जाए? वफ़ात तक ले जाए। तो हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की मर्ज़ुल वफ़ात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, कुछ हकीम और अतिब्बा जो भी थे उन लोगों ने बताया कि अभी ज़्यादा ज़िंदा रहने वाली नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मेरी और तुम्हारी मुलाकात जन्नत के अंदर में होगी, मेरी और तुम्हारी मुलाकात जन्नत के अंदर में होगी। तुम मुझसे पहले जन्नत में जा रही हो, रूहुल मानी की तफसीर में बयान करता हूँ। तुम जन्नत में जा रहे हो तो मेरी तरफ से मेरी 2 बीवियों को सलाम बोलना। कौन? हजरत खदीजा रदी अल्लाह हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरे अलावा आपकी तो कोई बीवी है नहीं, आपने मुझसे पहले शादी की और आज तक किसी और से तुमने तो शादी की नहीं, तो तुम्हारी औरतों को मैं जन्नत में कैसे ये करूँ, सलाम पहुँचा दूँ? तो कहा कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए जन्नत में 2 औरतें रखी हुई है, एक ये आसिया रदी अल्लाह अन्हा और दूसरा मरियम बिनते इमरान, मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो वालिदा है, ये 2 औरतें हैं। इनका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने 28वें पारा की इस आखिर के अंदर में किया हुआ है। तो अब देखो अल्लाह तबारक व तआला, अब उलमाए किराम ने भी उसके ऊपर में भी अजीब व गरीब बातें बयान की इस पर। चलो आप सोचो और क्या ताज्जुब की बात हो सकती है? आसिया ने क्या मांगा? आसिया ने जन्नत मांगी, आसिया ने जन्नत मांगी नहीं, रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नती, जन्नत मांगी। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत भी दी और जन्नत के अंदर में शौहर भी दिया। कौन शौहर? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मरियम के लिए और हज़रत आसिया के लिए। ये तो बाकायदा सही हदीस के अंदर में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये उनके साथ में शादी फरमाई। तो उलमा किराम ने लिखा है कि मांगने वाला अपनी हिस्से से मांगता है और देने वाला अपनी हैसियत से देता है। तो मांगने वाले ने मांगी थी, आसिया ने जन्नत मांगी थी, लेकिन ये शौहर जो है वो तो काफिर है और ये तो ईमान वाली है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन को शौहर के तौर पर कबूल फरमाया,
कि जन्नत भी मिलेगी, जन्नत बता दी, और जन्नत के अंदर में तुम्हारा शौहर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। एक बात और लिखी है उलमाए किराम ने इस पर कि मांगने वाला अपनी हैसियत से मांगता है और देने वाला अपनी हैसियत से देता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हिजरत के मौके पर आगे पीछे हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक पहले हिजरत करके गए, उसके बाद में इक्का दुक्का सहाबाए किराम हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जा रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हालात के अंदर में लिखा है कि अकेले हिजरत करके जा रहे थे। रास्ते के अंदर में एक जगह पर ठहरे और 13वीं या 14वीं रात का चांद था, रोशन चांद था। आँख खोली और तहज्जुद के लिए नमाज पढ़ने उठे तो चांद की रोशनी की तरफ देखा और चांद की रोशनी की तरफ देख कर के अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ मांगी कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, ए अल्लाह तेरे रास्ते वाली मौत मुझे नसीब फरमा। शहादत यानी शहादत, तेरे रास्ते वाली मौत नसीब फरमा। एक दुआ ये मांगी और दूसरी दुआ ये मांगी वजअल कब्री फ़ी मदीनती हबीबिक, वजअल कब्री फ़ी मदीनती हबीबिक, और मेरी कब्र को तेरे महबूब के शहर के अंदर में बनाना। दो दुआएं मांगी, दो दुआएं मांगी। एक तो अल्लाह के रास्ते की शहादत मांगी और दूसरी मदीना मुनव्वरा की मिट्टी मांगी कि मदीना मुनव्वरा के अंदर में मुझे मौत आवे, वफात आवे। अब इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रास्ते की मौत मांगी थी तो कहीं पर भी जिहाद में जाते, शहीद हो जाते। बदर में, ओहद में, खंदक में कितने 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 गज़वात हुए, कितनी लड़ाइयाँ हुई, शहीद नहीं हुए, शहीद नहीं हुए ना। किसी भी गज़वा में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। उनके ज़माने में भी बहुत फितने हुए, बहुत से लोग मुर्तद हो गए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और दूसरी तरफ जो है बहुत से कबीले मुर्तद हो गए। इसका भी एक लंबा किस्सा है। बहर के उस वक्त के अंदर में भी मौत नहीं हुई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो जब खलीफा बनाए गए, खलीफा बनाए जाने के बाद उनको जो शहीद किया गया तो उलमा किराम ने लिखा कि सिर्फ ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के रास्ते की मौत मांगी थी। उनके तस्वुर में, उनके दिलो दिमाग में ये नहीं था कि मस्जिद नबवी के अंदर में, मस्जिद नबवी के अंदर में मुझे शहीद किया जाएगा। नहीं मालूम था और नहीं मालूम था कि रियादुल जन्नह के अंदर में मुझे शहीद किया जाएगा, और ये नहीं मालूम था कि मैं नमाज पढ़ाता हूँगा और मुझे शहीद किया जाएगा, और ये भी मालूम नहीं था कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के अंदर में मुझे दफन किया जाएगा। सिर्फ एक दुआ मांगी थी, कौन सी? अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, ए अल्लाह तेरे रास्ते की मुझे मौत नसीब फरमा। तो मांगने वाले ने अल्लाह के रास्ते की मौत मांगी और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या दिया? शहादत दी। कहाँ पर शहादत हुई? मस्जिद नबवी में फजर की नमाज पढ़ाते हैं और पहले ज़माने के अंदर में, या पहले ज़माने क्या बल्कि नमाज फजर की जो नमाज पढ़ने के जो तरीके हैं वो 3 तरीके हैं। अंधेरे में शुरू करे और अंधेरे के अंदर में ख़त्म करे। इस्फार और रोशनी, चांदना जो हम पढ़ते हैं, रोशनी के अंदर में शुरू करे और रोशनी के अंदर में ख़त्म करे, 2 तरीके। और तीसरा तरीका ये है कि इगलास यानी अंधेरे में शुरू करे और उजाले के अंदर में ख़त्म करे। अंधेरे में शुरू करे और उजाले में ख़त्म करें, तो इसीलिए तो सूरह बकरा पढ़ते थे, आल इमरान पढ़ते थे, सूरह यूसुफ पढ़ते थे। हमारे तरह नहीं,
वल अस्र इन्ना अतैना कल कौसर। 3 तरीके हैं नमाज के। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद नबवी के मेहराब के अंदर में खड़े हुए। फिरोज जो था वो यहूदी का जो गुलाम था वो नेज़ा लेकर के वहाँ अंधेरे के अंदर में छुप गया था। अब मालूम है कि अंधेरे में जब नमाज पढ़ेंगे तो कुछ नज़र तो आता नहीं। जैसे खड़े तकबीर हुई और इकामत कही गई और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह अकबर कहा तो अल्लाह अकबर कहते ही उस फेरोज़ ने जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पेट के अंदर में जो है नेज़ा मार दिया। और यही सबब बना किसके लिए? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के लिए। तो कोई अल्लाह तबारक व तआला ने शहादत अता फरमाई, मस्जिद नबवी में अता फरमाई और रियादुल जन्नह में अता फरमाई, मेहराब नबी के पास में अता फरमाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर अता फरमाई। कितनी कितनी ज़्यादा फजीलत है। और इन्होंने कहा था दूसरी जो दुआ मांगी थी कि वजअल कब्री फी 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 बलदी हबीबिक, तेरे महबूब के शहर के अंदर में मुझे कब्र नसीब करना। तो उलमा ने लिखा कि अगर जन्नतुल बकी के अंदर में भी दाखिल कर देते तो ये किसका शहर है? अल्लाह के हबीब का शहर है। या किसी और कब्रिस्तान के अंदर में दफन कर देते तो ये भी तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। मांगा था महबूब के शहर के अंदर में मांगने वाले ने, और देने वाले ने क्या दिया? रोज़े अक़दस के अंदर में उनको जगह नसीब फरमाई। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारका जो है ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कमरा है। पहले भी बताया था कि नबी की वफ़ात जहाँ पर होती है वहीं पर नबी को दफन किया जाता है। वहीं पर वफ़ात हुई थी, वहीं पर दफन किया गया। उसके बाद में चूँकि कमरा था हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का था, वो मालिक थी। उसके बाद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई तो उनकी कब्र भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में हुई। उसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि जब तक अल्लाह के रसूल का नज़र इसमें था और उसके बाद में मेरे अब्बा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र थी तो मैं बगैर पर्दे के जाती थी, बगैर दुपट्टे के भी जाती थी। एक मेरा शोहर है और एक मेरा अब्बा है, तो पर्दा किससे? न पर्दा शोहर से और न पर्दा बाप से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये जो नेज़ा मारा गया, इसके बाद में अतिब्बा को बुलाया, कुछ दवा ट्रीटमेंट इलाज वगैरह हुआ, लेकिन इसके बाद में उनको जब दूध पिलाया गया तो दूध वो ज़ख्म से निकल गया। तो अतिब्बा ने कहा कि अब बचना मुश्किल है। उस वक्त के अंदर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहला भेजा कि उनको कहो कि अगर इजाज़त हो तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पड़ोस के अंदर में मैं दफन होना चाहता हूँ। तो उन्होंने इजाज़त दे दी। आए यहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं हयात हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मेरी शर्म की वजह से या हया की वजह से उन्होंने इजाज़त दे दी हो सकता है कि वो दिल से राज़ी न हो। मेरी जब वफ़ात हो जाए तो मेरी वफ़ात हो जाने के बाद उनको बताना कि अब उमर दुनिया के अंदर में नहीं रहे, उमर की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब क्या कहते तुम इजाज़त देते हो? अगर वो इजाज़त दे तो फिर मुझे वहाँ पर दफन करना, नहीं तो फिर आम कब्रिस्तान में या जन्नतुल बकी के अंदर में मुझे दफन कर देना। इनकी वफ़ात के बाद में भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से जब इजाज़त मांगी तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनको इजाज़त दे दी। ये है अल्लाह वाली औरतों का तज़किरा। हज़रत आसिया का तज़किरा है, उसके बाद में थोड़ा सा तज़किरा हज़रत मरियम का भी करना है, फिर सूरह हूद की जो आयतें बाकी है उनको भी अर्ज़ करना है आइंदा कल। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा।